Okay, so we formally begin our topic of cumulative frequency. अब cumulative frequency का सबसे पहले मैं आपको मतलब बताऊंगा. People in 4A already know the definition and some of the other people also know this definition, लेकिन बेहतर है कि we start it from the get go और हम बिल्कुल ये assume ना करें कि आप में से कुछ लोगों को आता है और कुछ लोगों को नहीं आता. That is why it's best that we start from the really basic stuff about stats. So I'm just gonna go to page number 171 and just move forward with what stats is all about. First of all, a bit of summary. आपको already पता है कि when I started this topic of stats, मैंने basically start किया था mean, median और mode से. Okay? आपको पता होना चाहिए कि जो आपका mean है वो क्या है, median क्या है और mode क्या है. Somebody is here. So you already know कि mean को मैंने basically define किया था. mean is equal to sum divided by count. median को मैंने define किया था as the middle value, but I need arrangement first. सबसे पहले मैंने arrangement करनी है. If it's not done already, then I need to find the position of the middle term by n plus 1 over 2, and then I just need to locate the middle term. If it's 1, तो मैं उसे locate कर लूँगा. If it's 2 of them, I'll have to take their average, and that's pretty much it. ये था median. Mode क्या था? It's simply the most repeated value, and that's pretty much it. अब मसला ये था, data is given to you in various forms. It's raw data, which is just a bit of numbers, just a bunch of numbers without any table, without anything. Whereas आपको frequency table भी दिया जा सकता है, which was given to you a lot of times in the homework 3, जिसमें 2 worksheets थी. और end पे you can have data in a frequency table with class intervals, meaning you have those क्रोकोडाइल क्लिप्स वाले साइन. सो उसके अंदर आप मीन ही निकाल सकते हो, मीडियन और मोड इतना अच्छा आप निकाल नहीं सकते. बट नाउ विद दिस टॉपिक ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू कैन एक्चुअली डू दैट ऑल्सो. So we directly move on to the topic of cumulative frequency and हम start इसका book की example से ही करते हैं, so that you guys already know what am I going to do. By the way, जिन लोगों को अभी तक confusion है, इस तरह के data का mean हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले you guys would be thinking कि सर हम product करते हैं, let's just multiply these guys. लेकिन मैं 10 को किससे multiply करूँ? 50 से या 100 से? So हम ना 50 की सुनेंगे ना 100 की सुनेंगे. We'll listen to the midpoint of these two people, which is 75. So find the midpoint of this interval, this interval, this interval, this interval. Make a new column just like this. और इन numbers को अब आपने frequency से multiply करना है. That is gonna basically give you the numerator, which is this thing, which is the product. और आपको पता है डिनोमिनेटर हमेशा आपका फ्रीक्वेंसी का सम होता है, which is going to remain as 50. So that is just a brief recap, and now we move forward to cumulative frequency. Cumulative सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. I'm gonna use this example as a framework over here. Cumulative frequency simply means accumulate, gather करना. Okay, so our topic of cumulative, अगर आप इसकी इंग्लिश पे जाओ, it simply means to accumulate, to gather, to add. Sir, I have a question, sir. हाँ हाँ, ये हमने अपनी क्लास में नहीं किया था ए में? ये हमने अपनी क्लास में किया था, लेकिन आज हमने इसके सवाल सॉल्व करने हैं. तुमने क्लास में सिर्फ ये ड्रॉ किया था. ओके, सो इस क्लास के अंदर नॉट ओनली एम आई गोना टीच यू ड्राइंग अगेन, चूँकि ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी तरह हमें एग्जाम में ड्राइंग आ सकती है. हम बिल्कुल एग्जामिनर को चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई तुम तो दे ही नहीं सकते, वो दे सकते हैं. ठीक है. सो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहो. इफ यू गाइज रिकॉल हाउ डू यू कैलकुलेट द मीडियन थ्रू अ फ्रीक्वेंसी टेबल, आप ऊपर से शुरू होते हो एंड देन यू कीप ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसीज. आई नेवर टोल्ड यू टू मेक अ कॉलम आउट ऑफ इट, but now I will tell you to actually make a column out of it, and the heading of that column is going to be cumulative frequency. That is why I'm going to use this example from the book, and first of all I am going to make the cumulative frequency column, because that is actually my first question over here, और फिर मैं बाकी सवाल solve करूँगा. So just let us do this. Okay, ये मैंने पूरा सवाल कॉपी कर लिया.
and I'll paste it over here and let's try to solve it one by one. सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस सवाल की सॉल्व करनी है दैट इज़ गोना बी द फॉलोइंग। मैंने यहाँ एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ड्रॉ करना है जो कि मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई न्यू कॉलम नाउ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरे पास शायद पूरी स्पेस ना हो कि मैं ये लिख सकूँ, क्यूमुलेटिव frequency FREQ, and that is my new column over here. Once again ये मीडियन निकालने के लिए आप काम करते थे लेकिन it's now gonna be done more formally, ठीक है। जब so now you need to read this data as I am going to speak it in front of you. किसी ने कोई सवाल पूछा? Okay, so please use the chat for educational purposes only, right? सो ये मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, दिस ऑन वन नोट से शेयर करना बहुत आसान होता है। ऑलराइट, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है ऐड करते जाओ। आई कैन ब्लाइंडली ऐड इट, लेकिन मैं ज़रा ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपके जहन में लाऊं। द टेबल समराइजेज द वेट्स ऑफ 60 मेल रग्बी प्लेयर्स। 75 से 80 kg के दरमियान कितने रग्बी प्लेयर्स का वेट था? सिर्फ 3 लोग थे। ओके, 80 से 85 के दरमियान कितने रग्बी प्लेयर्स का वेट था? 11 थे। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है ऐड करते जाओ, यानी यू आर नाउ गोना थिंक 75 से लेके 85 तक कितने लोगों का वेट था, यानी शुरू से लेके एंड तक। सो 3 + 11 द आंसर इज गोना बी 14। और ये आंसर कैसे आपके पास आया? 3 + 11, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट अप यू नीड टू फिल इन द नंबर इन फ्रंट ऑफ द 12। तो मैं यहाँ ना 3 के सामने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट वी स्टे इन द लाइन्स एंड वी डोंट मूव आउट ऑफ देम। ये देखो हम लाइन से आगे मूव करने लगे थे, सो आई विल मेक लाइन्स ऑन ऑल ऑफ दीज। ओके, एनीवेज आगे हम जाते हैं। 12 और लोग आ गए इन द रेंज ऑफ 85 to 90। सो 75 से लेकर 90 तक कितने लोगों का वेट आपने काउंट कर लिया है? 3 + 11 + 12 दैट्स गोना बी 14 + 12 दैट इज गोना बी 26। मैं मेंटल मैथ्स कर रहा हूँ, अगर कोई गलती करूँ तो प्लीज़ मुझे रोक देना। सो दिस इज गोना बी 14 + 12। ओके, हम आगे चलते हैं। अब 90 से 95 14 और लोग मेरी काउंटिंग में आ गए। फ्रीक्वेंसी इज जस्ट काउंटिंग। सो इन टोटल अब मेरे पास कितने लोग हैं काउंटिंग में 75 से लेकर 95 तक? दैट्स 3 + 11 + 12 + 14। 26 + 14 इट गिव्स यू अ टोटल ऑफ 40। ओके, सो दिस इज सिंपली 26 + 14, राइट। अब मैं आगे चलता हूँ। आई एड फर्दर 13 पीपल टू दिस काउंट, सो इट बिकम्स अ 53। आपको ये जो मैं छोटे फॉन्ट में लिख रहा हूँ ये बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं, इट्स ओनली फॉर योर वर्किंग एंड आई स्टॉप राइटिंग इट राइट नाउ, क्योंकि आई थिंक आपको समझ आ गई है कि हाउ एम आई मेकिंग दिस कॉलम नाउ। 4 और ऐड करो, दिस बिकम्स अ 57। 2 और ऐड करो, दिस बिकम्स अ 59। और 1 ऐड करो, दिस बिकम्स अ 60। इज इट अ सरप्राइज दैट द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 60? मुझे सवाल में पहले ही दिया हुआ था 60 मेल रग्बी प्लेयर्स। आई ऑलरेडी न्यू माई टोटल काउंट। फ्रीक्वेंसी काउंट को कहते हैं। वंस अगेन मैं लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी इज सिंपली अ डमी वेरिएबल विच शोज काउंटिंग। ओके, मुझे पता है कि माई टोटल फ्रीक्वेंसी इज 60 विच मीन्स द फाइनल वैल्यू इन माई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीड्स टू बी दिस टोटल। ये चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट टेक दिस लाइटली। ओके, ये मैंने टेबल तो ड्रॉ कर लिया एंड विद दिस आई हैव सॉल्व पार्ट नंबर ए, कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर योर डेटा। नहीं सर, तो एक मिनट, काउंट कैसे होती है फ्रीक्वेंसी? सम नहीं होता? फ्रीक्वेंसी सिंपली मीन्स काउंट। ये 60 रग्बी प्लेयर्स हैं, इनके वेट्स तुमने यहाँ डिवाइड कर दिया। लाइक कितने रग्बी प्लेयर्स हैं जिनका वेट 75 से 80 kg के दरमियान है? 3 ऑफ देम। कितने रग्बी प्लेयर्स हैं जिनका वेट 95 से 100 के दरमियान है? 13 ऑफ देम। कितने रग्बी प्लेयर्स हैं वो विच आर वेरी हैवी, जो 110 से 115 kg के दरमियान है? ओनली 1 ऑफ देम। सो फ्रीक्वेंसी सिंपली काउंट होता है, इट्स ऑल काउंटिंग। याद करो जब मैंने आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सिखाया था फ्रॉम जस्ट रॉ डेटा, मैंने कैसे आपको बताया था 1,1,1,1 एंड सो ऑन। कितनी दफ़ा 1 लिखा हुआ है? 5 दफ़ा 1 लिखा हुआ है, सो फ्रीक्वेंसी में 5 लिख दो, जस्ट लाइक दैट। फ्रीक्वेंसी सिर्फ काउंट होता है। हाउ मेनी टाइम्स इज दिस थिंग रिपीटेड, हाउ मेनी वैल्यूज डू यू सी विद इन दिस रेंज? फ्रीक्वेंसी सिंपली काउंट होता है। मैंने पार्ट ए तो कर लिया, अब मैंने पार्ट बी करना है। आपने ग्राफ बनाना है, नॉट जस्ट एनी ग्राफ, अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखना कि हम बनाते कैसे।
सो आई नीड टू स्क्रॉल डाउन अ बिट, थोड़ा सा मुझे शायद जूम आउट भी करना पड़े इफ़ यू गाइज एक्चुअली वांट मी टू शो दिस फुल स्क्रीन। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ये नज़र आ जाए। ओके, सो आई ड्रॉ द ग्राफ। मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ। आई होप यू गाइज कैन सी इट ऑल। थोड़ा सा अब मेरे ख्याल से बेहतर नज़र आ जाएगा। यस, सो नाउ I need to draw my axis. I hope I'm using the black pen. Yes, black ही है, so I go back to the full screen, right? और यहाँ अब मैं अपना एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे अपना वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करनी है विच इज़ अ टोटल ऑफ 60। ओके, तो मैं यहाँ से अपना वाई एक्सिस शुरू करता हूँ। दिस इज 60, दिस इज 50, दिस इज 40, दिस इज 30, दिस इज 20, दिस इज 10 एंड दिस इज 0। ओके, मैं यहाँ आ गया एंड नाउ ऑन दिस लाइन आई हैव टू शो द वेट्स। ठीक है, मैंने यहाँ सारे वेट्स शो कर दिए। आप भी अपनी कॉपीज़ में ये एक्सिस ड्रॉ कर लो एंड आई होप दैट यू गाइज कैन मेक सेंस ऑफ इट। Somebody is here. Do you know who this is? SS 10 PM 786 by G. Sadik, sir. Who can Sadik. teach this guy to have a decent name? Sir, Canadian है sir. हाँ सर, Canadian? अयान की तरह। नहीं, Ayan is actually better than, like Ayan की हमने यहाँ grooming कर दी है, सादिक की अभी वो वो हुई नहीं, वो डिंकी स्क्वाड है ना। right? So I don't know what that means, लेकिन I will ignore it. So y axis पे आपका cumulative frequency है. So this is cumulative frequency. It's not frequency anymore. It's cumulative frequency. और यहाँ x axis पे आपका weights होने चाहिए. Weights मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 75 से लेके 115 तक. So अगर यहाँ आप 0 ले भी लो ना, 0 से लेके 75 तक देर आर नो पीपल, देर इज नो फ्रीक्वेंसी। सो इवन इफ मैं यहाँ 0 डाल भी दूँ ना, आई जस्ट प्लेस अ जैग्ड लाइन ओवर हेयर विच मीन्स मैंने एक्सिस को ना ज़रा स्क्वीज कर दिया एंड आई क्विकली जंप ऑन टू 75। तो ये मेरा 75 आया, राइट? इसके बाद मेरा आया 80, इसके बाद मेरा आया 85। सो आई मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर। दिस इज अ 90, दिस इज अ 95, दिस इज अ 100, दिस इज अ 105, this is a 110, this is a 115 and that basically finishes our list. ये हुए weights, हमेशा अपने लेबल, हम अपने एक्सिस को लेबल करते हैं and the unit is I think kg. Okay, 85, 90, 95, 100 and this is gonna be 105, this is 110 and this is 115. Okay, अब हमने इसे करना है प्लॉट। प्लॉटिंग के लिए मैं ज़रा अपना कलर चेंज कर लूँ एंड देन आई कैन स्टार्ट प्लॉटिंग विद यू गाइज। ये प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ 75 के वेट से पहले इज देयर एनी काउंट, इज देयर एनी फ्रीक्वेंसी? No sir. नो, दिस मीन्स कि 75 पे मेरी फ्रीक्वेंसी 0 होनी चाहिए। 75 और उससे पहले मेरी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 0। दैट इज़ वाई माई ग्राफ स्टार्ट्स एट अ 0 एट 75 kg. ओके, सो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? ये, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। अब मुझे बताओ जब आपने 80 kg तक पहुंच गए, व्हेन यू हैव क्रॉस्ड टिल 80 kg, कितनी फ्रीक्वेंसीज आपने कवर की हैं? 3 of them, right? So it means when you are standing at 80 kg, your first point should be at a 3. मेरा ग्राफ ज़रा छोटा है तो मेरा बहुत स्क्वीज्ड होगा। यू नो दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ 3 ओवर हेयर। शायद आपको नज़र ना आ रहा हो बट दिस इज़ एक्चुअली अ 3। मैं इरेज कर दूंगा, आई डोंट नीड टू शो दैट, लेकिन आपको पता है कि ये पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट मेरा 75 और 0 पे हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? 80 एंड 3। अब आगे चलो, when I've crossed 85 kg in weight, what's the total frequency that I've crossed up till now? It's a 14. So 85 के ऊपर आपने 14 पे अपना दूसरा डॉट लगाना है which is somewhat gonna be over here. Okay, so मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया अपना पॉइंट। सिमिलरली अब 90 पे आ जाओ। जब मैंने 90 का वेट क्रॉस कर लिया, व्हाट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी दैट आई हैव क्रॉस्ड अप टिल दिस पॉइंट? माइंड इट, मेरे वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, खाली फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब मैंने 90 का वेट क्रॉस कर लिया, व्हाट्स द टोटल फ्रीक्वेंसी दैट आई हैव क्रॉस्ड? 26। सो 90 के ऊपर आप 26 पे चले जाओ। आई थिंक 26 इज गोना बी समवेयर ओवर हियर। ओके, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, 95 जब आपने क्रॉस कर लिया वेट्स में, सो व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव क्रॉस्ड इन टोटल? 3 + 11 + 12 + 14, ये 40 है। ओके, सो डू यू सी मैं प्लॉटिंग कैसे कर रहा हूँ? पहले 75 पे 0 था, दिस वाज अ 0 फ्रीक्वेंसी। फिर हर राइट वाली
राइट वाली लिमिट के साथ मैं इसे प्लॉट कर रहा हूँ। 85 के साथ 14 प्लॉट करो, 90 के साथ 26 प्लॉट करो, 95 के साथ 40 प्लॉट करो, 100 के साथ 53 प्लॉट करो। दैट्स माई प्लॉटिंग। इस तरह आपने सीखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना, क्योंकि अगर ये एग्जाम में दिया हुआ भी हो, यू शुड नो हाउ टू एनालाइज इट। और मैं आपको एग्जाम के सवाल दिखाऊंगा जिसमें ये पहले से दिया हुआ है, एंड इफ़ यू डोंट नो दिस ट्रिक, आप आगे सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ प्रोबेबिलिटी के सवाल, परसेंटेज के सवाल, हर किस्म के सवाल, इवन नॉर्मल इस तरह के सवाल भी वो लिंक कर सकता है। So we need to know all of these things, okay? 95 पे as I was saying I've crossed a total of 40 frequency, तो मैं यहाँ आ गया 95 पे। I hope you know where I am, okay? आगे चलते हैं। 100 का वेट जब मैंने क्रॉस कर लिया, द फ्रीक्वेंसी इज 53। सो 100 पे आप 50 और 53 यानी थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, विच बेसिकली मेक्स मी कम टू दिस पॉइंट, ओके? इसके बाद 105 का जब मैंने वेट क्रॉस कर लिया, इट्स अ 57 वेट। 105 पे आया 57, विच बेसिकली टेल्स मी टू स्टॉप ओवर हेयर, ओके? 110 पे मेरा गेम ऑन हुई 59 पे, सो 110 पे मैं 59 पे पहुंचा, विच इज गोना बी ओवर हेयर। और 115 पे मैं 60 पे पहुंच गया, विच इज माई मैक्सिमम। ये मेरा मैक्सिमम आ गया 115 पे, विच इज दिस लिमिट ओवर हेयर। Now my main task is to actually make a curve. अब आपको पता होना चाहिए this is always a curve. Do not join these points by straight lines ऐसे, no, कभी भी नहीं। Even आपको एग्जाम में सवाल भी कभी ऐसे नहीं आएगा, अगर आया तो it will be some sort of a mistake in most cases, okay? यहाँ तो उसने आपको सवाल में दिया ही ऐसे है, तो आप फिर उसकी बात मान लो, वरना 9 times out of 10 this has to be a curve. O levels के अंदर हमें ये हाथ से ड्रॉ करना पड़ता था, आपको भी in some शायद आए शायद ना आए, but you still need to know that this is always a curve. So just bear with me while I draw this smooth curve. आप भी अपनी कॉपीज में ये ड्रॉ कर सकते हो. It needs to be one single stroke of a smooth curve. ये तोड़ के आपने नहीं बनाना, okay? So I see my drawing skills have actually improved over the years, and I've made a smooth curve just by this thing over here. अब मसला यह, कर्व तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वही है बात, मैंने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, उसका फायदा क्या है? सो लेट्स हैव अ 2 minute recap. बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कौन सी 5 चीजें मुझे बताती है? हु वुड लाइक टू आंसर दिस, इफ एनीवन वुड लाइक टू डू दैट? Sir, you know the minimum, the maximum, Yes. the lower quartile, the upper quartile, Yes. and the median. एंड द मीडियन। ये 5 चीजें हैं जो अगर मुझे कोई भी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट दियो, मैं तुम्हें आंखें बंद करके बल्कि देख के उसे फौरन बता सकता हूँ विदाउट एनी कैलकुलेशन। एंड इफ आई वांट टू डू सम कैलकुलेशन, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, मैं इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम माइनस मिनिमम मैं रेंज भी निकाल सकता हूँ, okay? 7 things in total I can find out through a box and whisker plot. अब आप मेरे से सवाल करोगे, सर if I'm given a cumulative frequency table, what can I find from it? पहली चीज जो आप यहां से निकाल सकते हो, आप यहां से सारी क्वार्टाइल्स निकाल सकते हो, आप यहां से मीडियन निकाल सकते हो, आप यहां से हर किस्म की परसेंटेज, हर किस्म की प्रोबेबिलिटी और इस तरह के जनरल सवाल, ये जो पार्ट 2 और पार्ट 3 दिए हुए हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हो। इट्स वेरी पावरफुल। लेट मी गिव यू अ डिटूर अगेन। मैंने आपसे कहा था कि जब आपको इस तरह का सवाल दिया हो, आपने अपनी वर्कशीट में भी सॉल्व किया होगा, जब आपको इस तरह का सवाल दिया हो, आपको मीडियन निकालने का कभी नहीं कहा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहा जाएगा व्हाट इज़ द मीडियन इंटरवल, किस इंटरवल के अंदर मीडियन मौजूद है। सो यू कैन जस्ट डू 50 + 1 / 2, गो टू द 25th एंड द 26th टर्म, एंड यू वुड लाइक बी एबल टू टेल कि मीडियन या इधर लाई करता है या इधर लाई करता है। दैट्स नॉट एक्चुअली द आंसर। मुझे तो मीडियन के आंसर्स ऐसे देखने की आदत है, द मीडियन इज 125.5, द मीडियन इज 150.2। ये तो एक रेंज है कि मेरा मीडियन 100 से 150 के दरमियान लाई कर सकते हैं, ये तो कोई बात ना हुई, ये तो आप तुक्का मार रहे हो। द पावर ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज, इस तरह के डेटे का, सॉरी इस तरह की इंफॉर्मेशन का मुझे ये एक्यूरेट मीडियन देगा, एंड आई एम गोना शो यू हाउ. So your first learning outcome over here is how do I calculate the median from a cumulative frequency graph. So I come down over here. How do I calculate the median from a cumulative frequency graph? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको याद होगा, मैं n+1/2 करता था ना. It's gonna be even more simple over here. All you need to do is n/2.
where n is your total frequency. n is equal to your total frequency which is a 60. आपकी cumulative frequency 60 पे end हुई थी, total frequency. So your median is gonna be 60 over 2 which is gonna be 30. Go to 30 on the y-axis. Go to 30 on the, एक सेकंड तलहा मुझे सिर्फ ये लिखने दो. हाँ अब बताओ. What's the main reason why we don't do n plus 1? n plus 1 I think that's how everyone has made it because यहाँ n plus 1 की ज़रूरत है नहीं. In like they don't actually make you go through the trouble कि आपकी even number of terms है, you will have 2 terms in the middle. It's all gone now. कुछ भी नहीं. जो n over 2 का आंसर आता है head over to the graph. ये 30 आपकी ये वैल्यू है ना, इधर आओ, just come over here, right? Go to 30 on the y-axis, then come down on the x-axis. This is gonna be exactly and accurately your median, जो कि मेरे ख्याल से 92 आ रहा है because I don't have a grid over here. एग्जाम में आपको बॉक्सेस के साथ ग्रिड दी जाएगी. So go to 30 on the y-axis and come down on the x-axis then. So come down to the x-axis and you will get to the answer of, so the answer of the median is actually मेरे ग्राफ में 92, आपका ग्राफ शायद आपको 91 या 93 दे रहा हो. इसमें 9 times out of 10 एग्जामिनर ने मार्जिन दिया होता है +1 और -1 का. सो नेवर बी कंफ्यूज कि सर मेरा तो 92 नहीं आ रहा, मेरा गलत होगा. नो, यू वोंट लूज एनी मार्क. मेथड आना चाहिए. ओके तो आपने मेथड सीख. I don't understand what's going on with the y-axis and the x-axis. How is it? y-axis पे आपका काउंट है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, राइट? यू हैव अ टोटल ऑफ 60 टर्म्स. आपको पता है कि इफ़ यू हैव अ टोटल ऑफ 60 नंबर्स, आपका मीडियन कहाँ लाई करेगा? दरमियान में, यानी ऑन क्लोज टू द 30th टर्म. सो सबसे पहले मीडियन की पोजीशन तो निकालो. How do you find the position of the middle term when you have a total of 60 terms? You are not going to do n plus 1 over 2 anymore. You are just going to do n over 2, right? Your total frequency is a 60. आप 60 over 2 कर लो. So your answer is Sir, हाँ sir, please. I don't understand the y-axis and the x-axis for the. y-axis आपकी frequency है. No. हाँ बताओ. No. But how do you go from 30 to 92? We have 60 over 2 correct. My 30th term, my middle term of this data is my median. Okay, what is that? वो है क्या? Is it an 85? Is it a 90? Is it a 91? Is it a 95? क्योंकि आपको डेटा तो यहाँ दिया हुआ है. Let's say आप कह लेते हो सर, if I apply the previous method of finding the median, I can safely say that it's gonna lie in between 90 and 95 if I move down the frequency column. But that's not enough for me. मुझे अब accurate answer चाहिए. Is it a 91? Is it a 92.5? Is it a 93? क्या है वो? What is the 30th? What is the middle value of your data over here? So cumulative frequency curve is so powerful that I can go to the 30th position over here. So आपकी आवाज़ बहुत कट रही है. वाकई में I'm having a अच्छा, वाकई में मेरी आवाज़ क्या कट रही है? नहीं सोहा की कट रही है, आपके ही कट रही है. मेरा इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं. एक सेकंड, लेट मी जस्ट लाइक रिकनेक्ट टू द अदर वन. आप रिकनेक्ट कर लो, मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ. नो वरीज. नहीं सर, ये तो समझाएं. आप तक लास्ट टाइम मुझे ये समझाया था मेरा आंसर 90 kg आ रहा है. हाँ तुम्हारा आंसर 90 kg आ रहा है. तुमने अपने y एक्सिस पे 30 से चले हो और फिर x एक्सिस पे वैल्यू अपनी नोट डाउन कर ली. ऐसे ही है ना? वेट सर, कैन यू स्क्रॉल डाउन? ओके, अब ठीक है. सो अनस, go to 30 on the y-axis, travel towards your graph. मेरे माउस को देखो. come down on the x-axis. ये क्या आंसर है? ये सबका फर्क होगा because everyone of you are like is doing it in his copy. और कॉपी में कोई ग्राफ पेपर नहीं है. वी डोंट हैव प्रॉपर एक्सेस, वी डोंट हैव प्रॉपर लेबलिंग. सबका आंसर फ़र्क होगा. आप सिर्फ मेथड को अंडरस्टैंड करो, अपनी फ्रीक्वेंसी को आधा करो, गो टू दैट पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एंड सी द एक्स एक्सिस वैल्यू. दैट्स इट, ख़त्म. दिस इज़ योर मिडल वैल्यू. डन. इसी तरह अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं. इफ़ यू हैव हाँ It's please. okay if the answer is around 93 or 94. Yeah, sure. It's just an estimate after all. Exactly, because ये आपके ग्राफ पे डिपेंड करता है.
एग्जाम में आपको बिल्कुल एक्यूरेट बॉक्सेस के साथ ग्राफ दिया जाएगा, सो यू वोंट रियली हैव एनी इश्यूज कि सर मेरे दोस्त का 90 आंसर आ रहा था, मेरा 95 आ रहा था, व्हाट द हेल इज दिस, ऐसे नहीं होगा। ऑल ऑफ यू वुड गेट एक्यूरेट आंसर्स। असल में यहाँ मेरे पास कोई ग्राफ पेपर, कोई ग्रिड है नहीं, आई हैव ड्रॉन दिस बाय हैंड, और बाय हैंड इतना एक्यूरेट नहीं होता। सो जस्ट बेयर विद मी ऑन दिस एंड जस्ट फोकस ऑन द मेथड। मेथड क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 60 उसे आधा करो, come to the y-axis on this point which is 30, move towards your graph, come down to the x-axis, look at this value, ये आपका मीडियन होगा, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, दिस इज मीडियन। ओके, Q2 मैं इसे कह देता हूँ, आई होप यू नो दैट Q2 इज द मीडियन। ओके, आगे चलते हैं। हमने मीडियन निकालना सीख लिया, लेट्स फाइंड आउट द लोअर क्वार्टाइल। अब आप मुझे बताओ लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, लाइक पोजिशन वाइज, विच पोजिशन इज दिस लोअर क्वार्टाइल? जब मेरा डेटा किस डिवीजन में होता है, लाइक इज इट हाफ, इज इट क्वार्टर, इज इट द थर्ड क्वार्टर, क्या होता है ये? व्हाट इज अ लोअर क्वार्टाइल? Anyone? Half of the median. Good, half of the median, जिसका मतलब है the first quarter. No, wait, sir, एक second. If it's a 30th term, how do you get to 92? 30th term, 30th position, मैं फिर से कहता हूँ, frequency only tells you the count, it only tells you position. इस position पे कौन सी value पड़ी हुई है weights की? So stand over here, you are standing over here at 30, अपने ग्राफ पे जाओ, when you have a 30 on the y-axis, what do you see on the x-axis? Just go to your graph and see the x coordinate, that's all I'm saying. Oh, अच्छा। Okay, so that's it. मैंने ये सारा लिखा हुआ है, go to 30 on the y-axis, come down to the x-axis at this position and you would see a 92. मेरे केस में 92 है, आपका कुछ और भी हो सकता है, 91 हो सकता है, 90 हो सकता है, anyways. अब आप मुझे बताओ लोअर क्वार्टाइल मैंने निकालना है। लोअर क्वार्टाइल का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब होता है 50% ऑफ द डेटा, राइट? लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है द फर्स्ट क्वार्टर, यानी 25% ऑफ द डेटा, व्हेन आई हैव क्रॉस्ड 25% ऑफ माय डेटा। आप मुझे बता सकते हो कि इफ योर टोटल वैल्यूज आर अ 60, व्हाट्स गोना बी द 25% ऑफ इट, व्हाट्स गोना बी अ क्वार्टर ऑफ इट, व्हाट्स अ क्वार्टर ऑफ 60? So इसका formula is simply gonna be n divided by 4, which in this case is gonna be 60 divided by 4. This is the position that you want to be at. So be on 15 on the y-axis. That's 25% of your total frequency. Once again, position. Be where you have crossed a quarter of your data. That's a quartile. Okay. So go to 15 on the y-axis. Go to 15 on the y-axis and then see the corresponding value on the x-axis. So let me go to 15 on the y-axis. Median का आधा क्या होता है, like 30 का आधा क्या होता है, that's a 15, या 60 का quarter क्या होता है, that's a 15. यहाँ 15 आपको नजर आएगा between 10 and 20. I hope you can see this 15. Okay, stand over here. और यहाँ से अब अपने ग्राफ की तरफ जाओ. Can I move to my graph like this? And then can I move down like this? So I see my value is really close to 85. I'll take it as an 86. आप लोग 85 भी ले सकते हो. 85, 86 क्यों? हम क्या कहते हैं 75 पे नहीं आकर रोक सकते इसको? 75 तो ये है. हेलो, आप ये कहना चाह रहे हो, सो अनस इज प्रैक्टिकली सेइंग कि यहाँ 15 पे चलना शुरू करो और यहाँ किसी ने थप्पड़ मारा है इसे, तो यहाँ नीचे आ जाओ. ब्रदर, आई एम ओनली अलाउड टू मूव डाउन व्हेन आई कम टू माई लाइन. मेरी लाइन ये है. ये ग्राफ बनाने का कोई मकसद तो छोड़ दो. आई कैन ओनली चेंज माई डायरेक्शन. यार आपको ग्राफ के पॉइंट्स नहीं नोट करने आते? इफ आई टेल यू ये क्या पॉइंट है, कैन यू टेल मी द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट आप यहाँ से देखते हो, वाई कोऑर्डिनेट आप यहाँ से देखते हो. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. और तो मैं कुछ नहीं कह रहा. फॉलो योर लाइन, फॉलो योर ग्राफ. When I say what is the x coordinate when your y coordinate is a 15, how will you answer this question? यहाँ 15 पे आओ, अपने ग्राफ की तरफ जाओ और मुझे बता दो कि x coordinate क्या है. That is all that I'm asking from you. Okay? So you can't stop at a 75. ऐसे नहीं होता कि मैं यहाँ चल रहा हूँ, मेरी लाइन यहाँ पड़ी है, मैं यहीं से टर्न मार लूँ और यहाँ नीचे आ जाऊँ. ऐसे नहीं होता. That cannot happen. It will never happen. Okay? आपने अपनी लाइन को फॉलो करना है. It simply means अगर मैं आपसे कहूँ what is the x coordinate when the y coordinate is a 50, पहले 50 पे खड़े हो, अपनी लाइन को टच करो and then come down.
तो ये आपका तकरीबन आंसर होगा. द लाइन हैज़ अ वैल्यू, यू कांट जस्ट इग्नोर इट और अपनी मर्जी से अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करो. यू कांट डू दैट. ओके, so this value of 86 is going to be my lower quartile. Lower quartile को मैं Q1 से represent कर रहा हूँ. You should know these symbols. मैं 50 दफ़ा क्लास में लिखवा चुका हूँ. Okay, go to 15 on the y-axis and then come down to the x-axis. Come down to the x-axis. Okay, which basically makes me to cross the value of 86. So your answer for the lower quartile is 86. इसी तरह मैं आपको अपर क्वार्टाइल का भी बता देता हूँ. व्हाट्स द अपर क्वार्टर ऑफ इट? आपको पता है कि दिस 15 वाज लाइक अ लोअर क्वार्टर ऑफ इट. कैन यू डिवाइड 60 इंटू 4 क्वार्टर्स? 60 को 4 से डिवाइड करो, पहले 15 होता है, फिर 30 होता है, फिर क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? क्वार्टर, ऊपर वाला क्वार्टर. Sir, upper quartile would be, sir, it will be मुझे 97. सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे बताओ. विच फ्रीक्वेंसी डू आई नीड टू बी एट? यहाँ 15 तो पहला क्वार्टर हुआ, 30 दूसरा Sir, क्वार्टर हुआ, 45th, थर्ड क्वार्टर कौन 45th सा? position. सो इट्स गोना बी 45. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये 45 कहाँ से आया. क्वार्टर का मतलब होता है क्वार्टाइल्स. I've divided my data into 4 quarters. This is where I've crossed 75% of the data. आपका टोटल था 60, right? 60 और स्टार्ट आप 0 से हुए. This is a 15, this is a 30, this is a 45. You see, I've divided my frequency into 4 quarters. 1, 2, 3, 4. So upper quartile के लिए कौन सी frequency पे आपने खड़े होना है? The third quarter, which is gonna be 45. Okay, so यहाँ मैं बात करूँगा upper quartile की, and it's gonna be synonymous to the lower quartile. So upper quartile पे हम जाते हैं. How can I find it through the cumulative frequency curve? मुझे एक दफ़ा ये सारा ड्रॉ करने दो. I'll jump to more questions from the worksheet जिससे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी in quick fire fashion, ताकि ये ड्राइंग के पार्ट को हम छोड़ दें. ओके, सबसे पहले पोजीशन क्या है अपर क्वार्टाइल की? द पोजीशन ऑफ द अपर क्वार्टाइल इज गोना बी 3 quarters of your total frequency. What's the 3 quarters of 60? The 3 quarters of your total frequency. It simply means 3 by 4n, which basically Sir, means I can't see the screen. you can't see the screen. Screen you're sharing. बाकी सबको नजर आ रही है स्क्रीन? Can all of you see my screen? Yes, sir. Yes. ओके, कोई ऐसा बंदा हो जिसे मेरी स्क्रीन ना नजर आ रही हो? सोहा, कैन यू नाउ सी माई स्क्रीन? सो अनस तो छोड़ ही गया. वाओ. नहीं, मैं इधर ही हूँ. अच्छा चलो, स्क्रीन सारों को मेरी नजर आ रही है ना? और शुड आई मूव आउट एंड Actually, present it? it's fine now, sir. Sorry, I moved. Okay. So upper quartile का मैं कह रहा था, you need to move to the 3 quarters now. What's the 3 quarters of 60? Right? What's the 3 by 4 of 60? आप 3 quarters को mentally भी कर सकते हो, मैं लिख के कर रहा हूँ. So you know that's a 45. When you stand at a 45, it means you've crossed 3 quarters of your total frequency. So come to 45 on your y-axis. 45 is over here on my y-axis. और यहाँ ज़रा चेक करो कि x एक्सिस पे वैल्यू क्या आती है. दिस वैल्यू इज गोना बी योर अपर क्वार्टाइल. सो आई कम डाउन ओवर हेयर. आप सबके आंसर्स फ़र्क आ सकते हैं. मेरा आंसर मेरे ख्याल से 97 के करीब आ रहा है या 97.5 आ रहा है. आई डोंट केयर अबाउट द आंसर्स, आई जस्ट केयर अबाउट द मेथड. सो Q3 इज गोना बी द अपर क्वार्टाइल. ओके, तो मैं अपना आंसर 90. सॉरी, आपको lower quarter, upper quarter दोबारा समझा सकते हैं? ओके, मैं आपको कराता हूँ. मैं सिर्फ अपना आंसर लिख दूँ. सो गो टू 45 on the y-axis, which is like the 45th term, the 3 quarters. Come down to the x-axis. Come down to the x-axis. And my answer over here for the upper quartile is going to be something like a 97.5. मैं अपने तौर पे लिख देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिखो. It's all kg. Okay, ये सब kg के units हैं, because it's all x-axis. मैं kg यहाँ भी लिख देता हूँ. Now once again revision. मुझे ये cumulative frequency curve दिया हुआ था.
और इस तरह के डेटा का दिया हुआ था जिसमें मैं पहले मीडियन निकाल ही नहीं सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये कह सकता था द मीडियन लाइज इन द क्लास इंटरवल ऑफ 95 से 100। दैट्स नो आंसर। ये तो एक ब्लैंक सा आंसर है कि 95 से 100 के दरमियान को मेरा मीडियन कहीं भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं आपको एक्यूरेट आंसर दूंगा। हाउ? Frequency means count and your y-axis is cumulative frequency, right? Your total frequency is a 60. 60 values में से middle value कौन सी होगी? Obviously it's going to be close to the 30th value, right? So 60 values is like 60 numbers. You need to go to the 30th number, which is going to be found by n over 2, which is 60 over 2. So just go to the 30th number. You are standing at 30 on the y-axis. What is your x-axis value? What is your weight at this number over here, at this position over here? So आप यहाँ से right side पे जाओगे, go down to the x-axis and you will see this is your median. Median has effectively divided your data into two parts. If you see over here, the median has divided your data into two parts. आपको पता है quartiles का मतलब होता है quarters, जिसका मतलब है I need to divide my data into 4 parts. सबसे पहले a very easy way of doing this is, can you divide your total frequency into quarters? 60 को 4 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 15. इसका मतलब है every quarter is 15. 60 को 4 हिस्सों में डिवाइड करो, 15, 30, 45, 60, right? So the lower quarter is going to represent the lower quartile. 30 represented half frequencies. 15 is going to represent the lower quarter of the frequencies, hence the lower quartile. और इसे अगर आपको इस तरह निकालना नहीं आ रहा, सिंपली देसी तरीका यूज कर लो, अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी को 4 से डिवाइड करो एंड गो टू दिस नंबर ऑन द वाई एक्सिस. तो मैंने 60 को 4 से डिवाइड किया, आई गो टू 15, आई गो टू दिस नंबर ऑन द वाई एक्सिस एंड आई सी वेयर माई कर्व इज गोइंग. कर्व मेरा यहाँ था, आई कम डाउन, इट्स समथिंग क्लोज टू 85 या 86. मैंने लेट्स से इसे 86 ले लिया. दिस इज माई लोअर क्वार्टाइल. ओके, अपर क्वार्टाइल का मतलब है अपर क्वार्टर, अपर हाफ का आधा. ये जो 30 से 60 वाला हाफ है, इसका आधा क्या है? इट्स अ 45. वी ऑल नो दैट द अपर क्वार्टाइल, द अपर क्वार्टर इज अ 45. सो कम टू 45 ऑन द वाई एक्सिस, see where your curve is, come down and you will see it at a 97, a 96, a 98, जहां मर्जी आता है. This is your upper quartile. Q2 is the median, Q1 lower quartile, Q3 is the upper quartile. मैं symbols use कर रहा हूँ because I don't have space to write down the full words. अब अगर आपको upper quartile और lower quartile का पता है, can you find out the interquartile range? Yes, इन्हें minus कर दो. So I've solved practically all of my questions except these generalized questions. मैं अपनी cumulative frequency diagram से ये सवाल भी solve कर सकता हूँ. Let's now read them. Use your graph to estimate the number of men weighing less than 83 kg. 83 kg से कम कितने लोग हैं? अब दिया हुआ उसने आपको क्या है? You need to find out the number of men. Number of men का मतलब frequency निकालो, मतलब this is your unknown. The cumulative frequency is your unknown, right? दिया हुआ आपको क्या है? You are given the x-axis value. So now the tables have turned. जब मैं मीडियन और क्वार्टाइल्स और सारा कुछ निकालता था, मुझे फ्रीक्वेंसीज गिवन होती थी और एक्स एक्सिस वैल्यूज अननोन होती थी. नाउ इट्स द ऑपोजिट. द एक्स एक्सिस वैल्यूज आर गिवन टू मी लाइक 83 and 102 and I need to find out the cumulative frequency answers. Let's learn how to do this. Okay, find the number of men weighing less than 83 kg. Can you look at the x-axis and tell me कि 83 kg कहाँ लिखा हुआ है? I need to change my marker ताकि मैं यहाँ अलग तरीके से कर सकूँ. Can you look at the x-axis and tell me 83 kg कहाँ है? Is it gonna be somewhere over here? Is that true? Anyone who disagrees with me? Okay. 83 kg से अब जरा ऊपर आओ अपने ग्राफ की तरफ. This is where you come to your graph. Okay. And now come to this point over here. Okay. अब मुझे बताओ, काउंटिंग करके बताओ कितने लोग हैं जो 83 kg से कम वे करते हैं. Is it gonna be these people? These 10 people? Is that true? Like common sense है, मुझे नजर आ रहा है. It's definitely not gonna be these 50 people. ये सब 83 kg से ज्यादा वे करते हैं.
सो द पीपल हु वे लेस देन 83 kg, पहले मैं 83 पे आया, मैं अपने ग्राफ पे गया, आई मूव टू द लेफ्ट साइड एंड आई सॉ दैट माई फ्रीक्वेंसी वॉज अ 10. दीज आर द पीपल हु वे लेस देन 83 kg. So I have 10 people who weigh less than 83 kg. 10 people who weigh less than 83 kg. That is my answer for part number B2. Okay, I hope it's part number B, not C. ऊपर जाके चेक कर लेते. Oh, it's C. Sorry, मुझे C लिखना चाहिए. Okay, anyone confused in this? Please मुझे अभी से बता दो. याद रखो आपका y एक्सिस काउंटिंग बता रहे, इट्स ओनली काउंटिंग, कितने लोग, दैट्स ऑल इट्स शोइंग. ओके, फ्रीक्वेंसी डज नॉट मीन एनीथिंग, फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं होता, इट्स ओनली काउंटिंग. लाइक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कितने लोग, लाइक मैं अगला सवाल ही आपसे कर लेता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ मेन, कितने लोग हैं जो 102 kg से ज़्यादा वे करते हैं. सबसे पहले मुझे बताओ 102 kg लिखा हुआ कहाँ है. इज इट समवेयर ओवर हेयर? वुड एनीवन लाइक टू डिसएग्री के 102 यहाँ नहीं है? Like everyone agrees के 102 यहाँ है. Is that true? Okay. Yes, sir. तो आप अपने ग्राफ पे ज़रा ऊपर आओ. So I come up, मेरे पास ग्रिड नहीं है, so I have to be careful, right? And you come to the left side. और मुझे लेफ्ट साइड पे आके ज़रा काउंटिंग बता दो कितने लोग इस वेट से ज़्यादा वे करते हैं. That's it. खत्म. Sir, we can say that's like 53. Yes, And it's then something 69 close to like 57. 53. बिल्कुल. So अब आप मुझे बताओ ये जो नंबर ऑफ मेन वेइंग मोर देन 102 kg, शुड यू बी कंसर्न्ड अबाउट दीज पीपल, ये जो सिर्फ कोई 5 6 7 मुझे नजर आ रहे हैं, और शुड आई बी कंसर्न्ड अबाउट दीज पीपल, ये जो नीचे हैं इससे. सो मोर देन एंड लेस देन आर की वर्ड्स ओवर हेयर. मोर देन का मतलब जब आप इस वैल्यू पे लैंड किए हो, इनसे ऊपर वाली वैल्यूज का मुझे बताओ. आई एम इंटरेस्टेड इन देम. सिमिलरली जब मैं 83 पे था और मैं यहाँ 10 पे आया, आई एम इंटरेस्टेड इन दीज लोअर वैल्यूज, नॉट द अपर वंस, क्योंकि लेस देन का सवाल था, यहाँ मोर देन का सवाल है. सो दिस आंसर इज गन बी समवेयर क्लोज टू लेट्स से 7 पीपल और समथिंग. चूंकि मेरे पास इतना एक्यूरेट नहीं है, मैं इसे अंदाजन कह देता हूँ कि ये C3 का आंसर है. ओके, C पार्ट नंबर 3 का आंसर है. And its answer is gonna be 60 minus 53, ये 53 था, and that final answer is 7 people. Okay, 7 people weigh more than 102 kg. That is the thing that I actually can find from my cumulative frequency. अब आपको इसकी पावर का पता चल गया. Sir, हाँ प्लीज बताओ. yes, sir, can we use drawing tablets on the... No. अच्छा. Only typing भाई, ओनली टाइपिंग. जो आपने रफ वर्क करना होगा, आपको रफ पेपर्स और पेन्स और पेंसिल्स दिए होंगे, आपने वहाँ करना है. बट ओनली दैट वर्किंग विच इज़ ऑन असेस प्रेप, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो ही सिर्फ चेक होगा. नो वन इज़ गोइंग टू चेक योर रफ वर्क. इट्स नॉट गोना बी चेक. यू माइट आर्ग्यू कि सर इस तरह तो हम प्रैक्टिकली 2 दफ़ा एग्जाम सॉल्व कर रहे होंगे. पहले हम रफ शीट पे करेंगे, फिर हम उसे सारा कॉपी करेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे. येस, दैट्स ट्रू. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल यू, सिर्फ उतनी वर्किंग कॉपी करो जितने मार्क्स हैं, और आपको वर्किंग कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं. ओके, लेकिन सर इससे बड़ा टाइम कंजम्पशन होती है. ये होती है. इट इज़ ट्रू, इट्स अनफेयर ऑन यू गाइज. लेकिन जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता पास पेपर प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलेगा किस किस स्टेप के नंबर हैं, किस स्टेप के नंबर नहीं है. यू वुड अंडरस्टैंड कि मैंने करना क्या है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस. अगर आप अपना LMS खोलो, शायद आपको एक आधी वर्कशीट नज़र आ रही हो अबाउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो क्योंकि हमारे पास इस लेसन में अभी 15 मिनट हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट ओवर हियर. चूँकि मैंने अगर अभी ये छोड़ दिया विदाउट एनी प्रैक्टिस, आप ये सब भूल जाओगे और मंडे को आप कहोगे सर वो तो समझ नहीं आई थी. Wait, sir, before that, upper quartile below the bar, can you just like go back on that so I can like... अच्छा, आपने वो नोट डाउन करना है? Yes. ओके, आप ये कर लो. मैं सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं विंडो पे वो खोल लूँ. Okay, sir. I'm done. अच्छा, तो नाउ लेट मी जस्ट ओपन दैट वर्कशीट जो मैंने आपको करानी थी स्टैट्स में, और हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वर्कशीट पे जाते हैं. ये वर्कशीट असल में एक किस्म का होमवर्क था, बट ऑनेस्टली प्रिंटिंग इज़ नॉट अलाउड बाय द स्कूल एनी मोर. कोई मसले मसाइल हैं,
एक्सेसिव प्रिंटिंग हम कर नहीं सकते, हालांकि हमें ये प्रिंटेड अगर दिया हो तो बहुत आसान है। ओके, सो नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन ओवर हियर। ये वर्कशीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, LMS पे है। हमने कोशिश करनी है ये पूरी वर्कशीट हम इस लेसन में 10 मिनट में सॉल्व करें ताकि आपकी लर्निंग प्रॉपर टेस्ट हो जाए। नाउ ये मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया हुआ है। एवरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज गोना हैव अ शेप लाइक दिस, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है। व्हाई? बिकॉज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमेशा एडिंग होता है, वो ऐड होता रहता है। दैट इज वाई आई कीप ऑन इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग। कैन आई आस्क यू व्हाट्स माई टोटल फ्रीक्वेंसी ओवर हेयर? वुड एनीवन लाइक टू आंसर दिस? व्हाट्स माई टोटल फ्रीक्वेंसी? 80. So एक ही बंदे ने आंसर किया, तलहा, which tells a lot. So this is my total frequency. अनस, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि अगर मैंने इस सवाल में मीडियन निकालना है, मुझे वाई एक्सिस पे कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? 80 पे, 50 पे, 60 पे, कहाँ पे? 40 पे। तुमने ये 40 कैसे निकाला? वो क्या कहते हैं, n डिवाइड बाय 2। n डिवाइड बाय 2, इतनी सी बात है यार। लिटरली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सवाल इतने आसान है। n डिवाइड बाय 2। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो तुम्हारी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, मेरा ग्राफ 80 तक जा रहा है, यस, मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी 80 है। उसका आधा क्या है? 40। तो अगर मैंने मीडियन निकालना है, मुझे यहां खड़ा होना पड़ेगा। 40 कहाँ से आया? डिवाइड बाय 2। ओके, मूव टू द राइट साइड। राइट साइड पे मैं चला। अब देखो मुझे ग्रिड दिया हुआ है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि मेरा आंसर क्या होगा। मैंने इस लाइन पे नीचे चलना है। मैं जूम इन कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको बिल्कुल अंदाजा हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने इस लाइन पे नीचे आना है अपना मीडियन निकालने के लिए। सो यू गाइज कैन एग्जैक्टली टेल मी व्हाट माई आंसर इज गोना बी। एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर कि ये क्या आंसर होगा, ये अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा है। 64। ना 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 ना, ये 70 है भाई। एक मिनट रुका। 62, 64, 66, तो ये क्या होगा? 68। ये आंसर है। इतनी सी बात है। कितनी देर मुझे लगी? लिटरली मैंने सिर्फ यहां से चलना है, यहां से आना है, नीचे देख लेना क्या वैल्यू है, दैट्स माय आंसर। कोई वर्किंग की जरूरत नहीं, एक मार्क का आंसर है, खत्म। 68 लिखो और जाओ आगे। हमारे आईपी के अंदर भी हमें इस तरह क्वेश्चन हाँ आएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं आएंगे ऐसे। अच्छा, ये इस तरह तो बड़ा आसान है, ठीक वो है। फिर लिखना लुकना नहीं पड़ता। राइट, आगे चलते हैं आप। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु टुक लॉन्गर देन 80 सेकेंड्स टू कंप्लीट द चैलेंज। टाइम आपको कहाँ दिया हुआ है? एक्स एक्सिस पे, राइट। लॉन्गर देन 80 सेकेंड्स, इसका मतलब है मुझे यहां खड़ा होना पड़ेगा। इज दैट ट्रू? राइट। जी सर। एंड आई नाउ नीड टू गो अप। मुझे यहाँ ऊपर जाना है और मुझे अपना काउंट तलाश करना है। नंबर ऑफ पीपल का मतलब काउंटिंग, यानी फ्रीक्वेंसी तलाश करो। इसका मतलब द एक्स एक्सिस वैल्यू नीड्स टू बी गिवन टू मी एंड द वाई एक्सिस इज अननोन। मैं यहाँ 80 पे ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा। स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही चूंकि मैं राइटिंग टैबलेट यूज कर रहा हूँ। मैं ऊपर जाऊंगा, जाऊंगा, सो ऑन, एंड आई विल गो वेयर माई ग्राफ टचेस। इतना बड़ा ग्राफ है यार, छोटा बना देते। एंड आई गो अप एंड आई गो अप एंड आई गो अप, और ये देखो एग्जैक्ट ये वैल्यू आ गई है। ओके, नाउ आई मूव टू द लेफ्ट साइड। इधर व्हाट इज दिस वैल्यू ओवर हियर? वुड एनीवन लाइक टू आंसर कि ये क्या है? मैं जरा जूम इन कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को नजर आए। क्या है ये? 68। अच्छा, अब मुझे बताओ, शुड योर आंसर बी 68 या 80 माइनस 68? क्योंकि उसने कहा है लॉन्गर देन। लॉन्गर देन यानी तुम्हें इस 68 से ज्यादा वाले लोग चाहिए, कम वाले नहीं चाहिए। यू नीड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पीपल अबव 68, नॉट बिलो 68। दैट इज वाई द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज गोना बी 80 माइनस 68। तो हमेशा मोर देन, लेस देन, लॉन्गर देन, शॉर्टर देन, ये लफ्ज पढ़ लेना। ओके, खासतौर पर जब फ्रीक्वेंसी का सवाल हो। लॉन्गर देन का मतलब है पहले तुमने 68 को तलाश किया और उसे 80 जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उससे माइनस कर दिया। योर आंसर इज 12 पीपल, दैट्स इट। 12 काउंट, 12 पीपल। वाई एक्सिस शोज काउंट, इट शोज पीपल। ओके, कितना आसान सवाल था, मैंने लिटरली 2 मिनट में कर लिया। हमने 4-6 पे शुरू किया था, 4-8 पे खत्म है। आगे चलते हैं। ये हमारा सवाल आ गया। ओके, मैं जरा जूम आउट करता हूँ। हमारा सवाल आया है ये, द टेबल शोज द वेट इन ग्राम्स ऑफ सम कैट्स। ये कुछ बिलियां हैं, मैंने उनके वेट्स काउंट कर लिए। ओके, कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल मैं कैसे कंप्लीट करूंगा? यहाँ तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता दी 8, नीचे क्या आएगा? So we'll add 10, then 21, then गुड, 19, तो then हमने 15, 10 then ऐड किया, 9. ये 18 आया। हमने 21 ऐड किया तो ये बनेगा 39। 39. हमने 19 ऐड किया तो ये बन जाएगा
58 में भी, और 58 13 फिर ऐड किया तो इट्स गonna be 71. 71. Yes, that's absolutely correct. 71 plus 9, it's 80. Done. 80. Up Yes. जी सर. on the grid opposite, draw the cumulative frequency graph. अब आई वुड रियली वॉन्ट यू कि आप किसी ना किसी तरह मिनते तरले करके या किसी तरह इस पेज का फोटोकॉपी निकाल लो और इसे हाथ से ड्रॉ करना प्लीज़. मैं आपको ये जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. सबसे पहले ज़ीरो के ऊपर मेरा वेट, मेरा फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है. चूंकि ज़ीरो से पीछे तो कोई कैट नहीं है ना, कोई कैट ऐसी है जो -0.5 kg वेट करती हो, नहीं. तो ज़ीरो पे मैं ज़ीरो हूँ. आई विल स्टार्ट माई ग्राफ एट द ओरिजिन विच इज़ ज़ीरो. शुक्र है उसने एक्सेस मार्क किए हुए. अब मेरे सवाल का जवाब दो, जब मैंने 1 kg क्रॉस कर लिया, व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ कैट्स दैट आई हैव क्रॉस्ड? 8 कैट्स. ओके, सो जब मैंने 1 का वेट क्रॉस कर लिया, आई नीड टू बी एट एन 8 विच इज दिस थिंग. डन. आगे चलो. जब मैंने 1 के साथ 8 आया, जब मैंने 2 kg क्रॉस कर लिया, व्हाट्स द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैट्स दैट आई हैव क्रॉस्ड? 18. तो 2 के साथ मैंने 18 को प्लॉट करना है. 2 के साथ 18 को प्लॉट करो. ये मैंने कर दिया. ओके. सिमिलरली 3 पे जब मैंने 3 kgs क्रॉस कर लिया, तो मैंने कितनी टोटल कैट्स को क्रॉस किया? 3 के बाद आएगा 39. ओके, सो 3 के बाद आना चाहिए 39. 3, दिस इज 30, दिस इज 39, तो ये मैं आ गया इधर. 4 के बाद मेरे ख्याल से 58 आता है, तो मैं 58 मार्क कर देता हूँ. 4 के बाद 58 यहाँ आता है. 5 के बाद मेरा आता है 71 और फिर 80. तो 5 के बाद आता है मेरा 71, ये हुआ 71, और 6 पे मेरा आ गया 80. नाउ आई जस्ट नीड टू जॉइन दिस विद अ स्मूथ कर्व. मैं स्मूथ कर्व तो बना नहीं सकता बिकॉज दिस इज़ नॉट इन वन पेज, तो मैं बस तोड़ तोड़ के कर्व बना दूंगा. जस्ट बेयर विद मी ऑन दिस. आपको कंसेप्ट तो समझ आ गया कि ये प्लॉट कैसे हो रहा है. ओके, ये मैंने कर्व अपना ड्रॉ कर दिया. इससे ऊपर मैंने नहीं जाना. प्लीज स्टॉप राइट हेयर. आपका कर्व इससे ऊपर नहीं जाता. मैक्सिमम इज 80. डोंट ट्रीट इट लाइक अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट और इसे आगे तक ले जाओ, कभी भी नहीं. डोंट डू दैट. ओके, ये बस इतना सा सवाल था. ये मुझे डेटा दिया हुआ है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर दो. सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम सर? आप बनाओगे और फिर प्लॉट करोगे, ये याद रखना. हाँ, कोई सवाल था? Please. हमारा आईबी के अंदर इस तरह ही आएंगे ना, लाइक हम ये ऐसे करेंगे. आप ऐसे ही करोगे, लेकिन मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है, आईबी के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सवाल है तो सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आएगा. Sir, आपको इसके साथ बॉक्स प्लॉट भी मिला के आ सकता है. ओके, Usman, हाँ प्लीज़ बताओ. sir, आपने कहा था कैम्ब्रिज में the smoothness of a line has a mark in Cambridge. IB में से होता है ना, sir. भाई आप virtual है. आपको आईबी के अंदर ये ड्रॉ करना, लाइक कर्व ड्रॉ करना तो कभी आया नहीं, तो इसकी टेंशन ना लो. वो खुद ही join हो जाता है sir. हाँ, कर्व Like, कर्व एनालाइज करना आना चाहिए आपको सिर्फ. ओके, अच्छा. राइट. नहीं sir, but when we make the graph, like there's a line draw itself, like वो खुद ही बन जाता ओ, है. वो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए होंगे, आपने सिर्फ पॉइंट्स इंसर्ट करने होंगे, लाइन खुद ही बन जाएगी, टेंशन नहीं लेनी उसकी. अच्छा, सर आई हैव अ ठीक क्वेश्चन. है. हाँ हाँ, सर ये जैसे बॉक्स प्लॉट वाला आते हैं, ये क्राइटेरिया डी के क्वेश्चन आते हैं ये जनरली ए होता है, ये डी नहीं तो होता. क्राइटेरिया ए इतना मुश्किल है, क्राइटेरिया डी में क्या ओहो, होगा? डी की टेंशन ना लो, मुझे सिर्फ लाइन ऑफ बेस्ट फिट का टॉपिक करने दो. हम डी को चीट फाड़ कर देंगे, बहुत इजी है. ओके, अब ये मेरा सवाल है, आखिरी सवाल इस वर्कशीट का, एंड वी प्रैक्टिकली डन विद दिस. चूंकि ड्राइंग पे मैं टाइम ज़ाया नहीं कर सकता, आई थिंक यू नो बाय नाउ हम ड्राइंग कैसे करते हैं. ये आखिरी सवाल बहुत आसान है, चेक करना. मैं इसे 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना जब 15 होगा. ओके, ये मेरा ग्राफ है. सबसे पहले मुझे बताओ मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? मेरी टोटल 60. फ्रीक्वेंसी 60 है. अगर मैंने मीडियन निकालना हो, मैं कहाँ खड़ा हूँगा? 30. तो आपको क्या नज़र आ रहा है? मेरा पहला पार्ट है कि मीडियन वेट निकालो. इसका मतलब है कि मुझे 30 पे खड़ा होना है. इज़ दैट ट्रू? अब जब मैं 30 पे आया तो मैं यहाँ राइट साइड पे गया और मैं यहाँ नीचे गया. कैन यू गाइस टेल मी कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए एज आई स्क्रॉल डाउन? मुझे जल्दी से बता दो ये क्या वैल्यू है, गौर से देख के बताओ. मीडियन बताओ क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? Sir, it is 28 ग्राम्स. ग्राम्स भी याद से Grams, लिखना grams, बिकॉज grams. यूनिट्स लिखने चाहिए. एग्जामिनर कभी कभार गुस्से में आ सकता है, हमें उसे गुस्सा नहीं दिलाना. ठीक है, हमें नहीं पता उसने पी हो, उसने कुछ किया हो. ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, बैठो. कुछ भी कर सकते हैं. इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए मैंने पहले लोअर क्वार्टाइल निकालना है, फिर अपर क्वार्टाइल निकालना है. मुझे बताओ
अगर मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है तो लोअर क्वार्टाइल किस फ्रीक्वेंसी पे होगी? अगर टोटल 60 है, मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है, मीडियन मेरा 30 फ्रीक्वेंसी पे आया था, लोअर क्वार्टाइल किस फ्रीक्वेंसी पे आएगा? हेलो 15. ओके, सो समबडी आंसर एज 15. मुझे नहीं पता सारे चुप क्यों हो गए थे. इट इज गोना बी अ 15. ओके, Since we have 60 is our total values, we divide that by in the quartiles we have 15. या is our first 15. quartile. हाँ हाँ बिल्कुल, 15, 30 एंड देन 45. तो लोअर क्वार्टाइल आपकी 15 पे आएगी. आप यहाँ चलो एंड मूव डाउन, एग्जैक्टली दिस पॉइंट्स टू 122. ये देखो एग्जैक्टली आंसर आया. इसीलिए मैं कह रहा था ग्रिड जब आपको दिया होगा ना तो आपके आंसर्स एग्जैक्ट आएंगे. ये 122 आंसर है. ओके, सो लोअर क्वार्टाइल का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ. इट इज 122 grams. Okay, upper quartile, as Talha was saying, 15, 15, 15. So 15, 30 and 45. आपने 45 पे जाना है. Move over here. देखना exact यहाँ आंसर आ रहा है. Move down again. और यहाँ चेक करना कि आपका क्या आंसर आएगा. एग्जैक्ट आपका आंसर आना चाहिए 153 पे, सॉरी 133 पे. ये देखो, द अपर क्वार्टाइल इज 133. दैट्स इट. ये दिस इज नॉट माई आंसर. मैंने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है. 45 पे जाओ, 133 आंसर निकालो. सॉरी 133 है. इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस. इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR is equal to upper quartile minus lower quartile, which basically means 133 minus 122, which is I think 11. ये मेरा आंसर है. That's pretty much it. The end. You solved this complete worksheet in less than 10 minutes. I think 10 minutes में आपने solve कर लिया. सिर्फ एक ड्राइंग का पार्ट हमने स्किप किया बिकॉज वी ऑल नो दैट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम. मैं PC पे इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकता, वो बहुत मुश्किल होता है. ओके, सो दैट्स इट. ये वाली वर्कशीट और इसकी सोल्यूशन मैं डाल दूंगा. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. और याद रखो प्लीज़, एक चीज़ याद रखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो बॉक्स प्लॉट की आपकी वर्कशीट थी उसका आखिरी सवाल मैंने आपसे कहा था आप नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट नो दीज कर्व्स. क्या अब आप ये कर सकते हो? एक बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? आपको 5 चीजें चाहिए होती हैं. द मिनिमम, द मैक्सिमम, द मीडियन एंड द क्वार्टाइल्स. मीडियन और क्वार्टाइल आपको यहां से निकालनी पड़ेंगी. मिनिमम ये दिया हुआ, मैक्सिमम ये दिया हुआ. विद ऑल ऑफ दीज 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू मेक द बॉक्स प्लॉट ओवर हियर? इज दैट पॉसिबल? कहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनाना है? अच्छा यहाँ पे. यस. ओके, वंस अगेन तलहा ने जैसे हमें कहा था, अगर हमें 5 चीजें दी होंगी, मिनिमम, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल और मैक्सिमम, ये दी होंगी तो हम बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं. मिनिमम यहाँ से मुझे मिल गया, मैक्सिमम यहाँ से मिल गया, क्वार्टाइल्स और मीडियन मुझे ऊपर से मिलेगा कर्व से. विद ऑल ऑफ दीज 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन आई मेक माई बॉक्स प्लॉट? मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इस तरह के सवाल आज भी डीपी में आते हैं. मैं आपको डीपी के पास पेपर भी दिखा सकता हूँ. सो इसे इजी ना लो. ये आपकी बॉक्स प्लॉट की वर्कशीट विच आई नो आप में से मेजॉरिटी ने कर ली हुई है. आपने इसका आखिरी सवाल भी करना है. दिस इज हाउ टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड. दिस इज वॉट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर. चूंकि एग्जाम में हमेशा एक टॉपिक का स्टैंड अलोन सवाल नहीं आता. बॉक्स प्लॉट का सवाल ट्री डायग्राम के साथ भी मिल सकता है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सवाल किसी और चीज के साथ भी मिल सकते हैं. सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस. ओके, अब हमने टॉपिक. एक सवाल है. हाँ प्लीज बताओ. सर ये क्या कहते हैं, क्राइटेरिया सी और डी तो समझाते हैं क्या होता है? सी सिर्फ कम्युनिकेशन होता है. सी अलग क्राइटेरिया नहीं होता. सी इज ओनली हाउ यू राइट योर आंसर्स. लाइक अगर फर्ज करो तुम लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के, जैसे मैंने सिंबल्स तुम्हें बताया मैं कि अपर क्वार्टाइल के लिए मैं UQ यूज़ कर सकता हूँ, मैं Q3 यूज़ कर सकता हूँ. अगर तुम इसके अलावा कोई Q10 सिंबल बनाते हो, सर ये अपर क्वार्टाइल है, तुम्हारे C में नंबर कट जाएंगे. यू हैव नॉट कम्युनिकेटेड मैथ्स करेक्टली. ऑल द नोटेशंस, ऑल द वे यू राइट मैथ्स, आप फ्रैक्शंस की जगह ये स्लैश का साइन नहीं यूज़ कर सकते. आप मल्टीप्लिकेशन की जगह ये स्टार का साइन नहीं यूज़ कर सकते. आप पावर की जगह हुक का साइन नहीं यूज़ कर सकते. दीज ऑल आर कम्युनिकेशन मार्क्स, राइट? लेकिन सर एक और सवाल है. लेकिन उसके अंदर ना
इन रियल लाइफ सिचुएशंस आती हैं, हाँ हाँ हाँ, उसका क्या सीन? रियल लाइफ से सिचुएशन आपका क्राइटेरिया डी है, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे सिर्फ इस हफ्ते के एंड पे जाने दो, जब मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट करा लूंगा मैं पूरा 20 नंबर का पास पेपर का सवाल तुम्हें रियल लाइफ का कराना है जिसमें सिर्फ अच्छा, लाइन और ऑफ बेस्ट फिट यूज हो रही है। हाँ जी, वो भी ठीक है। और क्राइटेरिया बी में क्या होता था? बी पैटर्न्स हैं, ये स्टैट्स हमारा खत्म होते ही हमने एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और क्वाड्रेटिक सीक्वेंस करनी है। अच्छा, ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर एग्जाम के 30 नंबर हमारे डन है, अभी से ही नोट कर लेना, बस ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। हो जाएगा। तो एग्जाम की अभी इतनी टेंशन ना लो, हमने कोर्स खत्म करने कि एक हमारी डेडलाइन है, कोर्स जैसे ही ख़त्म होगा हमने फिर करने ही पेपर है, हमने करने ही एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तरह के सवाल। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता कोर्स ख़त्म करने तो। सर ट्रिग्नोमेट्री हाँ हाँ पूछो। एक ऑनलाइन क्लास आप रख लेना या सेशन रख लेना जिससे आप MYB पुराने 4 की जिनके चीज़ें हमारे क्वेश्चन करा दूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये क्वाड्रेटिक्स एंड सो ऑन, ऐसे ही है ना। नहीं नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं समझ आती असल मुझे, में बाकी सब कुछ आ गया। पाइथागोरस और ट्रिगोनोमेट्री लिंक्ड है, ठीक है। तो जब मैं इसकी कोई क्लास रखूंगा ना मैं पाइथागोरस भी साथ कराऊंगा क्योंकि ये दोनों लिंक्ड हैं और ये ऑब्वियसली ओके ये सर, हर एग्जाम में सवाल आते हैं इनके, ये टॉपिक्स ही ऐसे, ठीक है। ठीक है सो सर। वीव कंप्लीटेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली। इसमें एक आधा कॉन्सेप्ट रहता है जो मैं मंडे को आपको बताऊंगा, शायद आपने वर्ड सुना हो परसेंटाइल का, ये वर्ड मैं सिर्फ आपको बताऊंगा मंडे को, एंड दैट कंप्लीटली कंप्लीट्स दिस टॉपिक ओवर हेयर। इस वर्कशीट जो बॉक्स प्लॉट की है हमने इसका क्वेश्चन 1 और 5 और 6 कर लिया था, ये आखिरी सवाल भी आपने लाजमी करना है, नंबर 1 प्रेफरेबली इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नंबर 2, ये वर्कशीट मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि ये LMS पे हो, हमने तकरीबन सारी ये कर ली है, इसीलिए मैं इसके आंसर्स के साथ इसको अपलोड कर दूंगा, आपकी मर्जी है इसे प्रिंट आउट करके दोबारा करना है दोबारा कर लो। अगर आपको एक और वर्कशीट चाहिए इसी तरह के सवालों की, वो भी मैं अनसॉल्व डाल दूंगा एज अ प्रैक्टिस। लेकिन अब हमने आगे चलना है, प्लीज़ बॉक्स प्लॉट को डिले ना करना। दोज पीपल हु डिड नॉट अटेंड द लेसन ऑफ बॉक्स प्लॉट्स, LMS पे हर चीज़ है, वीडियोस भी हैं, प्लीज़ वीडियोस को देखो, अपने दोस्तों से नोट्स लो और इस वर्कशीट को ख़त्म करो। यू कैन नॉट लेट दिस ड्रैग ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है, ड्रैग ऑन ना होने देना, राइट। अगले हफ्ते आप लोगों के पहले ही बहुत सारे क्विज हैं, आई ट्राई कि फ्राइडे को मैथ का क्विज हो जाए वरना हम बहुत आगे चले जाएंगे। उसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आएगी, बॉक्स प्लॉट भी आएगा, मीन मीडियन मोड भी आएगा। और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ मैं DP के पास पेपर से भी उसमें एक सवाल दूंगा, सो बी रेडी फॉर इट। हम अब MYP से ऊपर जाने वाले हैं, हम DP बॉयज़ हैं, ऑलराइट। सो ऑल द बेस्ट ओके सर, एंड इंशाल्लाह आप लोग ठीक है। अब जा सकते हो टू एंजॉय योर वीकेंड।